حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی نماز بیان کی ہے، صرف تکبیر تحریمہ کا رفع الیدین بیان کیا، سلام تک نہیں بیان کیا. اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا. یہ دو فرشتے جو ادھر بیٹھے ہیں، میں جھوٹ بولوں گا آج آپ کے سامنے تو اٹھ کے چلا جاؤں گا، قبر میں مجھے جواب نہیں دینا جو میں دوسروں کو گمراہ کر رہا ہوں. آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے اس جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے. صحیح بخاری کی حدیث ابو حمید ساعدی کی ہے، صرف پہلا رفع الیدین بیان کیا پھر نہیں کیا. تو وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں 10 صحابہ کرام اور 11ویں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو وہ 10 صحابہ میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. اور جو رفع الیدین حضور علیہ السلام کرتے تھے شروع زمانے میں کرتے تھے، ہم مانتے کرتے تھے. شروع میں تو حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس سے منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے. تو جیسے وہ مسائل چلے گئے یہ بھی چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مفتی عبد الواحد قریشی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تعلیم فرمائی جو انہوں نے پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور سلام تک نہیں کیا. تو میرے بھائیو آئیے دیکھتے ہیں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تعلیم فرمائی وہ کیسی تھی. میرے بھائیو یہ حدیث کو بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر 11 صحابہ کی ان کی طرف سے یہ خوشخبری اور بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ. 11 صحابہ کی گواہی. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حدیث ترمذی میں بھی موجود، ابو داؤد میں موجود، ابن ماجہ میں موجود، اور اس سند پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے ہیں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض بدبخت اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے ابو حمید سعدی سے. تو تابعی کی ملاقات محمد بن عمر بن عطا جو تابعی ہیں ان کی ملاقات ثابت ہے، صحیح بخاری میں متصل سند پوری موجود ہے اسی سند پہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 صحابہ کی موجودگی میں پایا، اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 25 سے 30 سال بعد کا ہے. 25 سے 30 سال بعد، کیونکہ جو تابعی بیان کر رہے ہیں وہ سما کے قابل اس وقت ہوئے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 30 سال گزر چکے تھے. تو وہ اس مجلس میں موجود تھے جس میں 10 صحابہ کرام اور 11ویں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو وہ 10 صحابہ میں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم سب سے زیادہ واقف ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. تو پتہ ہے ان صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے ابو حمید، آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ میں سے تھے، آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی جتنی ہم نے صحبت کی ہے، کیونکہ اس میں سیدنا ابو قتادہ بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابہ میں سے تھے. تو آپ تو بالکل اینڈ پر مسلمان ہوئے ہیں، آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صحبت ہی نہیں کی ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ ہم سے بھی زیادہ نماز کا طریقہ جانتے ہیں. لیکن صحابہ میں عاجزی تھی، انہوں نے نہیں کہا بیٹھ جا تو، انہوں نے کہا کہ آپ بیان کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیسا تھا، یعنی اگر ٹھیک ہوا تو ہم تصدیق کر دیں گے اور غلط ہوا تو آپ کی اصلاح کر دیں گے. تو پھر الحمدللہ انہوں نے جو نماز کا نقشہ کھینچا ہے، الحمدللہ اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ پوری کی پوری نماز اس کے اندر سموتی ہے الحمدللہ. اب یہ ورڈ بائی ورڈ میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کا ٹیسٹ ہی اس میں ہے. سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ جن میں ابو قتادہ بھی موجود تھے کھڑے ہوئے اور یہ سارا معاملات جو میں نے بیان کی اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر تکبیر کہتے. تو دونوں طریقوں سے درست ہے، پہلے اللہ اکبر کہہ کے بعد میں ہاتھ اٹھانا، سائملٹینیسلی اٹھانا، یا پہلے ہاتھ اٹھانا اور بعد میں اللہ اکبر کہنا. یہ تینوں طریقے حدیث میں ثابت ہیں. بخاری مسلم میں ہم پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. اس میں ہے کہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے. تو اس میں الحمدللہ امت کے لیے آسانی ہے. پھر تکبیر کہتے، پھر قرات کرتے، پھر تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے اور پھر رکوع کرتے اور اپنی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ دیتے گویا کہ انہیں پکڑا ہوا ہو. ہاتھوں کو کمان کی طرح تان کر پہلوؤں سے دور کر لیتے، بالکل سیدھے ہاتھ رکھ لیتے رکوع کے اندر. کمر بالکل سیدھی کر لیتے، نہ تو سر مبارک کو جھکاتے اور نہ ہی بلند کرتے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے. یہ 30 سال بعد کا ذکر ہے. اور پھر اطمینان کے ساتھ سیدھے کھڑے ہو جاتے. پھر تکبیر کہہ کر زمین کی طرف جھکتے، سجدے میں ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے، ہتھیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھتے اور رانوں کو پیٹ
के साथ ना लगने देते, यानी खुलकर सजदा करते। पांव की उंगलियां किबला की तरफ मोड़ लेते, यानी ऐसे मुड़ी हुई होती किबला रुख। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करके बता दूं। फिर सर उठाते, बाएं पांव को मोड़ लेते और उस पर बैठ जाते, और इस कदर इत्मीनान से बैठते कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी जलसे के अंदर दो सजदों के दरमियान सुकून से बैठ जाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते, फिर तकबीर कहकर उठते और बायां पांव मोड़कर उस पर बैठ जाते, इस कदर इत्मीनान के साथ कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी दूसरा सजदा करके भी फिर बैठ जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको कहते हैं जलसा इस्तराहत। यहां तो जिक्र है और बुखारी शरीफ में इसका हुक्म भी मौजूद है। वो मैं जब उलमाए अरब का रद्द करूंगा कि उन्होंने नमाज के अंदर जो खराबियां डाली हैं इस वक्त उलमाए हरमैन ने, तो इनकी इंशाअल्लाह ताला जो इल्मी गिरफ्त करूंगा इसी लेक्चर में, उसमें मैं बताऊंगा कि दूसरे सजदे के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाया करते थे, बैठ जाते हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और दूसरी रकत भी इसी तरह मुकम्मल फरमाते। फिर जब दूसरी रकत के बाद खड़े होते तो तकबीर कहकर अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, यानी दो रकतें मुकम्मल करने के बाद जब तीसरी रकत में खड़े होते तो वही मौला अली ने जो कहा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदतैन के बाद, यानी कि दो रकतों के बाद भी रफ़ुल यदैन करते थे, इन्होंने भी उसी का जिक्र किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाकी नमाज में भी ऐसा ही करते, हत्ता कि जब आखिरी सजदा होता जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवर्रक फरमाया करते थे। तवर्रक क्या है वो सही बुखारी में पूरा तरीका भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां पांव मुबारक खड़ा कर लेते और बाएं पांव मुबारक को दाएं पांव की पिंडली से गुजार कर बाएं कूले पर बैठ जाते, जिस तरह हमारी घर में औरतें तशहुद बैठती हैं। ये है सही सुन्नत का तरीका। तो ये बड़ी अजीब बात है कि औरतें हाथ भी सही उठाती हैं। तो हम तो लोगों को कहते हैं यार जाके अपनी अम्मी से नमाज सीखो, मौलवी से ना सीखो, तो आपको काफी सारी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। औरतें जो है वो दूसरे सजदे के बाद भी बैठ के उठती हैं हाथों का सहारा लेकर, और बुखारी शरीफ में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाथों का सहारा लेकर दूसरे सजदे के बाद जब बैठते थे तो हाथों का सहारा लेकर रकत के लिए खड़े होते थे। अब भी आपसे कहूं कि मौलवी से नमाज ना सीखो, जाके अम्मी से सीखो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं कूले पर बैठ जाते और दाएं पांव के पंजे को किबला रुख कर लेते, दाएं हाथ को दाएं घुटने पर और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते और शहादत की उंगली से इशारा फरमाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेर देते। ये हदीस उन्होंने बयान की तो 10 के 10 सहाबा ने कहा तुमने सच कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इसी तरीके पर नमाज पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। 30 साल बाद 10 सहाबा और 11 में वो खुद 11 सहाबा की गवाही मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका यही है। और ये हदीस नकल करने के बाद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी इसके साथ भी लिखते हैं हाजा हदीस हसनुन सहीहुन, यह हदीस हसन सही है। और मजे की बात बताऊं आपको, सेम नमाज का तरीका कीमिया सादत में इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 505 हिजरी ने नकल फरमाया, और गुनियतुत तालिबीन में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 561 हिजरी उन्होंने भी सेम तरीका नमाज का लिखा है। अब 11वीं वाला पीर कहते हैं और 11 सहाबा की गवाहियों वाली हदीस नहीं मानते। हम भी 11वीं के मानने वाले हैं, 11 सहाबा की गवाहियों को। तो 11वीं वाले पीर ने भी यही बात नकल की गुनियतुत तालिबीन में। अब हम कहते हैं उनको भी नमाज का तरीका पता था, हालांकि हमारे लिए दलील नहीं वो, लेकिन जो लोग हमारे लिए दलील इतनी काफी है कि अहादीस के अंदर बात आ गई, लेकिन जो लोग अपनी निस्बत उनके साथ मजबूत करते हैं तो उनके तरीके पर नमाज भी तो पढ़े। और हैरानकुन बात है कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सारे छाप रहे हैं गुनियतुत तालिबीन का तर्जुमा और कीमिया सादत इमाम गजाली का तर्जुमा। तसव्वुफ की किताबें हैं, इनमें नमाज का तरीका तो जरा खोल कर देखें क्या है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन गए। हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वे तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक। आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं ना हुजूर, मैं आपके जमाने में होता तो हर वक्त आपको वुजू करवाता रहता। ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए। तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गांव एरिया में वापस चले जाओ। जब जाना तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है। एक बंदा अजान देगा जो ज्यादा कुरान जानता है और उम्र में भी बड़ा हो, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। क्लियर हो गया। ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाएं तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि जब नमाज शुरू करना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू में जाना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू से सर उठाना तो हाथ कानों तक उठाना, सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना, सुबहान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना, फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने ये कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टेब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से ये बता दें कि
हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है? फिर काम खत्म हो गया ना। रफुल यदैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में, जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। बुखारी में सिर्फ है कि उठाते, मुस्लिम में है कानों तक, और बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक। हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते, और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज हैं, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी इस्लाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफुल यदैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा इस तरह आया है कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे दूसरी और चौथी रकत के लिए जब तक बैठ ना जाए दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी इस्लाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा हुआ तो चौथी दफा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया पूरी तफसील के साथ है, जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो फिर सुकून से बैठो, और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। और मालिक बिन हुवैरिस वो हैं जो हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए, और आपको देवबंदी बरेलवी हनफी कहानी करा रहे हैं जी मक्के में रफुल यदैन होता था, मदीने में मना हो गया। और रफुल यदैन के जितने रावी हैं ना मेजॉरिटी वो हैं जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं, हिजरत मदीना नहीं, फतेह मक्का के बाद 8 हिजरी के बाद। वाइल बिन हुजर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में, बल्कि वाइल बिन हुजर तो फिर 1 साल बाद अबू दाऊद में सुनन नसाई में आया कि दोबारा आए, वो कहते हैं मैंने सर्दियों में देखा कि सहाबा इकराम चादरों के अंदर से रफुल यदैन कर रहे होते थे। उससे यह भी मसला पता चल गया कि चादर के लिए हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं, अंदर से भी रफुल यदैन हो सकता है। 8 हिजरी में बंदा मुसलमान हो रहा है, 9 हिजरी में वो दोबारा सर्दियों के मौसम में हुजूर की नमाज देखने के लिए आया मदीना शरीफ और रफुल यदैन से पढ़ते हुए देख रहा है। तो मसूख किस टाइम हुआ है? कोई नहीं हुआ सरकार। सुन्नी और शिया दोनों कायल हैं रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, और तीसरी रकत से उठते वक्त रफुल यदैन करने के ऊपर। ये दलील के बेताज बादशाह जो है ना, उनके ताज की हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लोगों का इल्मी लेवल है। जी रफुल यदैन का हुक्म दिखाएं जी, दिखा दिया। अब आपके पास क़यामत तक टाइम है कि आपने बताना है कि मालिक बिन हुवैरिस ने ये जो नाऊज़ बिल्लाह गलत नमाज सिखाई, कब उन्होंने तौबा की ये गलत नमाज सिखाने से। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।